ناظرین، پی ٹی آئی کی انتخابی مہم ریلی دفاع 144 کی نظر ہو گئی ہے۔ کینار روڈ سمیت دیگر مقامات پر میدان جنگ بنے رہے۔ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں ہاتھا پائی بھی ہوئی، جبکہ لاٹھی چارج، واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ متعدد پی ٹی آئی مرد اور خواتین کارکنان زخمی ہوں گے، جبکہ بڑی تعداد میں گرفتار بھی کر لیے گئے۔ عمران خان کی جانب سے ریلی منسوخ کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کے آغاز کے لیے لاہور میں ریلی، راستوں کی بندش کے باعث کینال روڈ اور زمان پارک میدان جنگ بنا رہا۔ وقفے سے آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھی چارج ہوتا رہا۔ پولیس کی جانب سے زمان پارک جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے۔ پولیس نے زمان پارک کا راستہ بند کیا تو کارکن مخالف سائٹ پر پہنچ گئے۔ کارکن لکڑی کے پٹھوں کا عارضی پل بنا کر زمان پارک آتے رہے۔ پولیس پی ٹی آئی رہنماؤں کی گاڑیاں بھی توڑتی رہی۔ زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پولیس کا پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد فسطائیت ہے۔ یہ ہتھکنڈے بتاتے ہیں کہ ان کی الیکشن کی نیت نہیں ہے۔ یہ ہتھکنڈے بتاتے ہیں کہ یہ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں، یہ اپنا مفاد چاہتے ہیں، اس ملک میں معاشی استحکام نہیں چاہتے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کو معطل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بدترین تشدد کے تمام تر مناظر تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہماری خواتین پر کیمیکل سے ملا کے پانی پھینکا گیا۔ ہمارے کارکن اس وقت درجنوں کے تعداد سے زخمی ہیں، ہسپتالوں میں موجود ہیں۔ یہ چاہتے ہیں افراتفری ہو، یہ چاہتے ہیں لاشیں گریں، یہ چاہتے ہیں خون بہے اور ان کی سیاسی دکان چلے جمہوریت کو معطل کر کے۔ پی ٹی آئی خواتین کی جانب سے عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے ریلی بھی نکالی گئی، جس کے شرکاء سے بھی پولیس کا تصادم ہوا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے شہر میں دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی۔ ہنگامہ آرائی کے دوران پی ٹی آئی کارکن کی مبینہ ہلاکت کا معاملہ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سخت نوٹس، فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واقعے کی مکمل، غیر جانبدارانہ اور حقائق اور شواہد پر مبنی انکوائری کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ جو بھی ملوث پایا جائے، قانون کے تحت انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دکھائی جانے والی ویڈیوز آج کی نہیں بلکہ پرانی اور جیل بھرو تحریک کی ہے۔ دانستہ طور پر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ شخص پولیس حراست میں تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے انکشاف ہوا کہ جہاں بحق شخص کو ایک پرائیویٹ گاڑی سروسز ہسپتال چھوڑ کر گئی۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے گاڑی اور اس کے سواروں کی تلاش جاری ہے تاکہ سچائی سامنے آ سکے۔ پوسٹ مارٹم اور سیف سٹی رپورٹ کے بعد درست حقائق کا تعین مکمل ہوگا۔ پی ٹی آئی کی ریلی کے دوران ہنگامہ آرائی کا یہ معاملہ ہے۔ تصادم کے نتیجے میں 2 ڈی ایس پی، 1 ایس ایچ او سمیت 11 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 39 پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں لیا۔ اس بارے رپورٹ کریں گے شاذیب شہزاد۔ انتخابی ریلی کے دوران پی ٹی آئی کارکن اور پولیس آمنے سامنے رہی۔ کینال روڈ اور زمان پارک کے باہر جھڑپیں ہوتی رہیں۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہاتھا پائی کے دوران 11 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں ڈی ایس پی سبزازار، ڈی ایس پی ٹاؤن شپ شامل ہیں۔ زخمیوں میں ایس ایچ او ہنجروال اور کانسٹیبل عرفان، ندیم، بلال، وقار، عبدالستار اور دیگر بھی شامل ہیں۔ ایک شدید زخمی پولیس ملازم کو نازک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کرنے والے 39 پی ٹی آئی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گرفتار کارکنوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 1 ماہ تک جیل میں رکھے جانے کا امکان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاذیب شہزاد، لاہور نیوز۔ تحریک انصاف کی ریلی کو روکنے اور دفعہ 144 کا نفاذ ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ جسٹس محمد وحید خان آج حماد اظہر سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ انتخابی ریلی کو روکنے اور کارکنوں پر تشدد کے خلاف پی ٹی آئی کا عدالت سے رجوع۔ لاہور ہائی کورٹ میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواستیں دائر کر دی گئیں۔ درخواست میں پنجاب حکومت، ڈی سی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ڈی سی لاہور کو ریلی کا مکمل شیڈول دیا تھا۔ انتظامیہ نے صبح دفعہ 144 لگا کر راستے بند کر دیے۔ کارکنان پر بدترین تشدد کیا گیا اور متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس اور انتظامیہ آئین کے آرٹیکل 15، 16 اور 17 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت رکاوٹیں ہٹانے اور پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کو شیڈول کے مطابق جاری رکھنے کی اجازت دے۔ رجسٹرار آفس نے سکروٹنی کے بعد درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جبکہ عمران خان نے تینوں مقدمات میں حفاظت ضمانت کی درخواستیں واپس لے لی ہیں۔ درخواست گزار پہلے پیش ہوں، پھر درخواست سماعت کے لیے مقرر کریں گے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے پی ٹی آئی وکلا کو واضح کر دیا ہے۔
साबिक वजीर आजम इमरान खान का हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू। थाना रमना के 2 और कोयटा के 1 मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए दरखास्तें दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत में पेशी के लिए 15 दिन की हिफाजती जमानत दी जाए। वकला दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कराने एडिशनल रजिस्ट्रार के पास पहुंचे तो एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा कि हिफाजती जमानत का असूल है कि मुलजिम पहले अदालत में मौजूद हो। पहले आप इमरान खान को हाई कोर्ट लेकर पहुंचे, फिर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। पहले भी आपने दरखास्त मुकर्रर करवा कर इमरान खान को पेश नहीं किया था। जज साहब कहते हैं कि घर बैठे शख्स को जमानत नहीं दे सकते। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना होने पर वकला ने तमाम दरखास्तें वापस ले लीं। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में पेशी का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर, जबकि जस्टिस आबिद अजीज शेख आज इमरान खान की दरखास्त पर ये समाअत करेंगे। इस बारे ये रिपोर्ट देखें। चेयरमैन पीटीआई का वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में पेशी के लिए हाई कोर्ट से रुजू। इमरान खान ने सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की वसातत से दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी मुखालफिन की जानिब से लातादाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। इमरान खान के केसेस की समाअत वीडियो लिंक के जरिए करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में नुक्ता उठाया गया कि सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल न होने तक कोई कार्रवाई न की जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्क्रूटनी के बाद दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख दरखास्त पर समाअत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की बात करेंगे, जो कहती हैं कि ख़वातीन को गैर सियासी नहीं होना चाहिए। ख़वातीन को अपनी मंशा के मुताबिक वोट डालने की आज़ादी होनी चाहिए। मुल्क में ख़वातीन को इनका जायज़ मुकाम दिलाने की कोशिश करूँगा। इस बारे ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन पर मॉडल टाउन लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने वीमन विंग से खिताब किया। कहती हैं पाकिस्तान में आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा ख़वातीन का है। ख़वातीन को शामिल किए बगैर कोई दिन मुकम्मल नहीं होता। कहते हैं कि ये बात तो सब ने सुनी है ना, कि पाकिस्तान के अंदर जो आबादी का या पॉपुलेशन का जो 50% है या मोर देन 50% है, निस्फ जो हिस्सा है वो ख़वातीन है। ये सब तो आपको पता है, ये बात आपको पता है, ये पूरी दुनिया जानती है। कोई भी दिन जो है वो मुकम्मल नहीं होता हमारी ख़वातीन को शामिल किए बगैर। तो हर दिन पाकिस्तान के अंदर विमेंस डे होता है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन ख़वातीन राइटर्स मौजूद हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अपना रोल मॉडल समझती हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे लिए मिसाल हैं। अरफा करीम ने IT इंडस्ट्री में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान के पास क्या ज़बरदस्त ख़वातीन राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं। यहाँ पर अगर मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। अरफा करीम हैं IT एक्सपर्ट। IT इंडस्ट्री में या पाकिस्तान के अंदर उसने एक ट्रेंड सेट किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन ने हर शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा करवा सकेंगे। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। पंजाब में इंतखाबी दंगल 30 अप्रैल को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 15 मार्च को अवेजा की जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 22 मार्च तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्क्रूटनी पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 27 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 3 अप्रैल तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 5 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 अप्रैल को अलॉट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त 14 मार्च तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना होगी। PTI रहनुमा उस्मान डार अपने भाइयों के हमरा महकमा एंटी करप्शन में पेश हो गए। एंटी करप्शन हुकाम ने मजीद रिकॉर्ड मांग लिया है। उस्मान डार का कहना है कि नवाज शरीफ ने रसीदें नहीं दी, लेकिन हम रसीदें देंगे।
عثمان ڈار اور ان کے بھائی عامر ڈار اور عمر ڈار پر غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام۔ پی ٹی آئی رہنما اپنے بھائیوں کے ہمراہ محکمہ اینٹی کرپشن میں پیش ہو گئے۔ محکمہ اینٹی کرپشن حکام نے عثمان ڈار سے مزید ثبوت مانگ لیے۔ محکمہ اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے سوال نامہ جاری کیا گیا۔ سوال نامے میں ڈار بردر سے اثاثہ جات کی تفصیلات طلب کی گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے، نواز شریف کی طرح ملک سے نہیں بھاگیں گے۔ کیس ہے کوئی نہیں، کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ ساری جو ایک رول آف لا کی بات عمران خان کر رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے دیے گئے سوال نامے میں اثاثہ جات، ذاتی قوائف، آمدن اور اخراجات کی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں عمران خان کی تحریک عدلیہ بچاؤ نہیں بلکہ ثاقب نثار بچاؤ تحریک ہے۔ ابھی بھی وقت ہے وہ نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے نکالنے پر قوم سے معافی مانگ لیں۔ عمران خان کی جان کو اس وقت خطرہ ہوتا ہے جب ان پر فرد جرم لگنے والی ہوتی ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے عمران خان کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ڈکلیئرڈ چور ہیں۔ انہیں صادق و امین قرار دینے والوں نے قوم کو سچ بتا دیا۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ موت سے پہلے سازش کا قوم کو بتا دیں تو شاید ان کی معافی ہو جائے۔ ثاقب نثار صاحب، آپ کو موت اس وقت یاد نہیں تھی؟ اگر اس قوم کو وہ پوری کہانی ابھی بھی بتا دیں اور سچ قوم کے آگے رکھ دیں تو عین ممکن ہے کہ یہ قوم آپ کو معاف کر دے۔ محسن شاہ نواز رانجھا نے عمران خان کو 13 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر وہ چور نہیں تو گیدڑ کی طرح نہ بھاگیں۔ عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس سے وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک ایسا شخص جو کہ اب ڈکلیئرڈ چور ہے، جو کہ عدالتوں سے چھپتا پھرتا ہے گیدڑ کی مانند، ایسا شخص جو کہ قوم کو دلیری کے سبق دیتا ہے اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا تھا کہ عمران خان انہیں بچانے کی تحریک نہ چلائیں جنہوں نے ملک کے خلاف سازش کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ بڑی خبر یہ ہے کہ مہنگائی میں گزارا مشکل ہو گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین نے مختلف الاؤنسز کی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ ملازمین کا ٹاؤن ہال میں مطالبات کے حق میں بھی مظاہرہ، اس بارے رپورٹ کریں گے عمران اکبر۔ حکومت نے وعدے پورے نہیں کیے، میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے ملازمین کی ٹاؤن ہال میں احتجاجی ریلی۔ مظاہرین نے حکومت سے فری میڈیکل، یوٹیلیٹی اور بگ سٹی سمیت دیگر الاؤنسز دینے کا مطالبہ کیا۔ ملازمین نے شدید نعرے بازی کی۔ ملازمین کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں الاؤنسز اور دیگر سہولتیں ملازمین کا حق ہے۔ اگر عورتیں اپنے حقوق کے لیے نکل سکتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی نکلیں گے اور نکلیں انشاءاللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے 27 نکات تھے چارٹر آف ڈیمانڈ میں، کوئی بھی انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تو جب ایڈمنسٹریٹر کارپوریشن جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپروول بھی دی ہے ان کو، اس کے باوجود ہمارے یہاں کے افسران نے ان کے حکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اس لیے اگر عورتیں جاگ رہی ہیں تو انشاءاللہ کارپوریشن کے مرد بھی جاگ رہے ہیں۔ ملازمین نے خبردار کیا کہ حکومت نے مطالبات پورے نہ کیے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ 20 سال کے دورانی میں 50 اسٹرکچر پلان روڈز پر منوعاً عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 2 سڑکیں تعمیر کر کے شہر کے 48 اسٹرکچر پلان روڈز کے تعمیر کے لیے حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہر میں ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھنے لگا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ اسٹرکچرل پلان روڈز کی تعمیر کا منصوبہ 20 سال کے دورانیے میں منصوبے پر منوعاً عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سڑکوں کی تعمیر شروع کرنے سے قبل اراضی کے حصول کے لیے سیکشن 4 نافذ کیا گیا۔ گزشتہ 10 برسوں سے سیکشن 4 نافذ کر کے سڑکیں تعمیر نہیں کی گئیں۔ ماسٹر پلان کی وضع کردہ 50 اسٹرکچر پلان روڈز میں سے صرف 2 تعمیر ہو سکی۔ شہر کی 48 اسٹرکچر پلان روڈز کے تعمیر کے لیے کئی حکومتیں کوئی کام نہ کر سکیں۔ 2017 میں LDA نے 2 اسٹرکچر پلان روڈز کی منظوری دی۔ پنجاب حکومت نے سالانہ بجٹ میں منصوبے ڈراپ کر دیے۔ اسٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر کے لیے 7 موضع جات پر سیکشن 4 نافذ کیا گیا۔ موضع نیاز بیگ، رکھمبا، امیر کوٹ، شاہپور خانپور، شاہپور کانجرا، چونگ اور جلیانہ پر سیکشن 4 نافذ کیا گیا۔ منصوبے کے لیے 151 کنال اراضی حاصل کی جانی تھی۔
सेक्शन 4 के नफाज के बाद अराजी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई। LTA और टीपा इंतजामिया स्ट्रक्चर प्लान रोड्स को तामीर ना कर सकी। मास्टर प्लान पर अमल दरामद न होने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा। LTA इंतजामिया का कहना है कि मास्टर प्लान 2050 में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स को शामिल किया गया है। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स तरजीहात में शामिल है, जरूरत के मुताबिक उनको तामीर कर रहे हैं। सुबह 9 बजे दफ्तर न आने वालों को पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नए DG LD का चार्ज संभालने के बाद बड़ा फैसला सामने आ गया है। मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं 1 विंडो सेल पर दरखास्तों पर ताखीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये रिपोर्ट देखें। नए डायरेक्टर जनरल LDA मोहम्मद अली रंधावा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा को अफसरान ने मुख्तलिफ शोबों बारे ब्रीफिंग दी। नए DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तमाम अफसरान और मुलाजमीन सुबह 9 बजे दफातर पहुँचेंगे। 1 विंडो सेल की दरखास्तों पर किसी तरह की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 विंडो जहाँ पे एप्लीकेशन जाएंगी, कोई बाय हैंड भी जाएगा तो वो भी उधर 1 विंडो में जाएगी एप्लीकेशन, उसका इंदराज होगा, उसके प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होंगे और वहीं से हमें पता चलेगा कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, कितनी पेंडेंसी है। मोहम्मद अली रंधावा ने मजीद कहा है कि जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील तरजीहात में शामिल है। चीफ इंजीनियर को मंसूबों की तकमील से मुतालिक टाइम लाइन वज़ा करने की हिदायत कर दी। चीफ इंजीनियर्स को कहा है कि अपने अपने प्रोजेक्ट्स लें और वो हमें ऑफिस में कम और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर आएंगे। अब इस दफ़ा जितने भी मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे विजिट करूंगा वो सरप्राइज विजिट होगा। हम सारे प्रोजेक्ट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करवाएंगे। उसकी एक और भी वजह यह है कि ट्रैफिक के भी बहुत सारे मसाइल होने शुरू हो गए। दूसरी जानिब LDA अफसरान और मुलाजमीन को नया हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। तमाम अफसरान और मुलाजमीन को सुबह 9 बजे दफ्तर पहुँचने का हुक्म जारी कर दिया गया। डायरेक्टर एडमिन LDA ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अफसरान दफ्तर पहुँच कर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर महकमाना कार्रवाई होगी। एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स, एडिशनल DG हाउसिंग, एडिशनल DG अर्बन प्लानिंग, चीफ इंजीनियर 1-2, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर और चीफ टाउन प्लानर को मरासला जारी कर दिया गया है। जनरल अस्पताल के यंग डॉक्टर्स एक मरतबा फिर सरापे एहतजाज बन गए। OPD में काम बंद करके मुजाहिरा किया। मरीज और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखें। यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों में एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फ्राहम करने का मुतालिबा। यंग डॉक्टर्स ने मुतालिबात के हक में जनरल अस्पताल में मुजाहिरा किया। डॉक्टर्स ने OPD में आए मरीजों को छोड़ा और एहतजाज में मगन हो गए। यंग डॉक्टर्स ने जनरल अस्पताल में प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव किया और धरना देकर नारेबाजी की। सदर यंग डॉक्टर्स जनरल अस्पताल डॉक्टर हसीब का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी न होने के बराबर है। उन्होंने मेडिकल यूनिट 2 की हेड को भी तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब जनरल अस्पताल में OPD की सहूलत बंद होने से मरीज और उनके लवाहिकीन रुल गए। PTI ममना फंडिंग केस के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी शहरी खातून को गैर मुल्की ज़ाहिर करने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी खातून बिनेश सलीम की दरख्वास्त पर समाअत की। खातून ने केस में गैर मुल्की करार देने को चैलेंज कर रखा है। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने PTI फंडिंग केस में गैर मुल्की ज़ाहिर किया। वकील अजहर सदीक ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने ममना फंडिंग केस में गैर मुल्की ज़ाहिर करके फ़ंड जब्त कर लिए। इस्तदा है कि अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे। अदालत ने बिनेश सलीम को गैर मुल्की ज़ाहिर करने का फैसला कलअदम करार दे दिया और दरख्वास्त निपटाते हुए दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में गुजरात डिवीजन और वज़ीराबाद समेत नए अजला के दर्जे को मुअत्तल करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। गुजरात डिवीजन और वज़ीराबाद समेत नए अजला बनाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इखलाक हैदर समेत दीगर दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों में नई डिवीजन गुजरात की तश्कील के खिलाफ निगरान हुकूमत के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। दौरान समाअत अदालत में निगरान हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से जवाब जमा करवाने की मोहलत तलब कर ली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 30 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख है। इससे कबल इन दरखास्तों का फैसला करना है। अगर फैसला नहीं होता तो हल्का बंदियों पर असर होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पर होगा। इस दरखास्त से हल्का बंदियों के हल्का नंबर पर फर्क आएगा। अदालत ने 22 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को जवाब देने की हिदायत कर दी। लाहौर
लाहौर हाई कोर्ट ने नए असला की मुअत्तली का निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म में मज़ीद तौसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम की सज़ा में कमी या खात्मे के लिए मुतासरा वुड्सा की रज़ा की शर्त का सेक्शन 402C गैर आइनी करार दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तारीखी फैसला जारी किया है। ये रिपोर्ट देखें। सदर की जानिब से मुजरिम की सजा में कमी यहाँ खात्मे का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुबारक अली की दरख्वास्त पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मुवक्कफ इख्तियार किया है कि मुबारक अली ने तिब्बी बुनियादों पर कत्ल के इल्जाम में सजा मुआफ न करने पर अदालत से रुजू किया। सरकारी वकील ने मुवक्कफ अपनाया कि सेक्शन 402C के तहत सदर या हुकूमत को वुरसा की मर्जी के बगैर सजा कम या खत्म करने का इख्तियार नहीं है। हुकूमत के हाथ बंधे होने की वजह से मुबारक अली को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अदालती मुआवन ने कहा है कि सदर को आर्टिकल 45 के तहत सजा माफ करने का इख्तियार है, जिसे 402C के तहत रोका नहीं जा सकता। अदालत ने फैसले में कहा है कि हुकूमत मुबारक अली की सजा में कमी के लिए केस आर्टिकल 45 के तहत सदर को भेज सकती है। आइन के आर्टिकल 45 के तहत सदर को सजा माफ या खत्म करने का इख्तियार बदतर है। सेक्शन 402C किसी हद तक सदर के इख्तियारात में रुकावट डालता है, इसलिए खिलाफ आइन है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसले में यह कहा है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल बीमार कैदियों की कबल अज वक्त रिहाई के लिए रिपोर्ट IG जेल खाना जात को भेजने के जिम्मेदार हैं। IG जेल खाना जात को ये रिपोर्ट मुनासिब अहकामात के लिए सूबाई हुकूमत को अरसाल करनी चाहिए। इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिस पर 4 साल बाद भी अमल नहीं हो रहा। चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का मामला वज़ीर आला के नोटिस में लाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 402C को आइन से मुतसादिम करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाशों की शनाख्त के लिए मैकेनिज्म बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इकबाम अमल-दरामद रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेशतर लाशें मनशियात का इस्तेमाल करने वालों की होती हैं। इन मुर्दा लोगों का डाटा मौजूद नहीं है। अदालत लाशों की बेहुरमती रोकने के लिए शनाख्त से मुतालिक डाटा बनाने का हुक्म भी दे। महकमा सेहत की जानिब से डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा सेहत और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ऑफिसर पेश हुए। महकमा सेहत के अफसरान के वकील ने अदालत को बताया कि महकमा सेहत और नादरा के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त भी दरकार है। अदालत ने महकमा सेहत को 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जाने लगी हैं। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी। मुर्गी का गोश्त 594 रुपये किलो की सतह पर बरकरार है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताएगा आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी की? बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं, जिसमें फल, सब्जियां और पोल्ट्री मसनूआत शामिल हैं, तो कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो नहीं रुक सका है, क्योंकि आज जो सब्जियों की सरकारी रिलीज है उसमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर एक बार फिर जो है 2 रुपए महंगा करके 48 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही टमाटर जो है वो 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 10 रुपए महंगा करके 660 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन अदरक की फरोख्त जो है 660 के बरस 750 रुपए फी किलो तक की जा रही है। सब 5 रुपए बढ़ाकर 110 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 130 रुपए फी किलो तक। इसी तरह मौसमी सब्जियों में टिंडे फार्मी 8 रुपए महंगे करके 58 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन यही टिंडे जो है मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 5 रुपए इजाफे के बाद 58 रुपए, लेकिन फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक की जा रही है। खीरा 10 रुपए महंगा करके 68 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक मार्केट में किया जा रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च 6 रुपए महंगी करके 80 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 80 के बरस शिमला मिर्च की फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरबी 10 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में। अच्छा अब्दुल कादिर, जैसा कि आपने बताया कि जो सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, दुकानदार भी अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो DC राफिया हैदर की जानिब से जो टीमें तश्कील दी गई थी, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई थी, वो कितनी मुतहरिक हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ या रजिस्ट्रेशन हैं, उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन ये जब एक बाजारों या मार्केट में कार्रवाइयाँ की जाती हैं और जुर्माने भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद रिलीफ जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि शहर की सब मंडियों में सरकारी महकमों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर मार्केट या परचून बाजारों में जो सब्जियां और फल हैं वो सरकारी महकमों के बराबर महंगे दामों फरोख्त किए जाते हैं। इस हवाले से शहरी
व्यापारियों का ये कहना है कि ये प्रैक्टिस साल से चलती आ रही है कि सरकार रोजाना की बुनियाद पर सुबह सवेरे सरकारी नजरनामे जारी करती है, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए जो है वो कोई खातिर इकदाम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से शहरियों को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ता है। सरकारी रेहड़ियों में कीमतों में इजाफे के बावजूद मार्केट में कीमतें मनमानी की जाती है। अच्छा अब्दुल कादिर, ब्रॉयलर की क्या सूरत हाल है? अभी 594 रुपये कीमत हो चुकी है, क्या मजीद कमी का इम्कान है? आज बिल्कुल, जो ब्रॉयलर है वो शहरियों की जानिब से ब्रॉयलर की खरीदारी जो है वो गैर मामूली तौर पर कम की गई है, क्योंकि ब्रॉयलर जो है वो जो आम तारीफ है उसकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी थी। तमाम ब्रॉयलर की जो सेल है वो कम होने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में कतरे बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि आज ब्रॉयलर की कीमतें 594 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। गुज़िश्ता रोज भी ब्रॉयलर की कीमतें जो है वो 23 रुपए तक कम की गई थी, ताहम आज जो है वो 594 की सतह पर बरकरार रखी गई है। और इस हवाले से जो ब्रॉयलर ट्रेडर्स है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रॉयलर की कीमतें जब भी जो है वो कमी की तरफ जाती हैं तो जो फार्मर्स हैं उनकी जानिब से ब्रॉयलर की सप्लाई जो है उसको जो है मुतासर किया जाता है ताकि कीमतों में इजाफा हो। लेकिन आज जो कीमतें हैं वो उसमें किसी की कम कमी बेशी नहीं हुई और 594 की सतह पर बरकरार रखी गई। ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे और मंडी की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। पीटीआई रैली में पुलिस पर तशद्दुद, जलाओ, घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का ये मामला है। गिरफ्तार मुलजिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। मुलजिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और लड़ाई झगड़ा समेत 12 दिफा शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात देंगे नुमान नूर से। जी नुमान। दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के वक्त पुलिस पर तशद्दुद करने, जलाओ गिराव करने और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमा में मुलविस मुलजमान को पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि इस हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पुलिस की इजाफी नफरी वो भी तैनात की गई है, जबकि मुकदमा में मुलविस गिरफ्तार मुलजमान को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि मुलजमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने 12 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, लड़ाई झगड़ा, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत ये मुख्तलिफ 12 दफात शामिल कर ली गई हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसके बाद जो है वो पुलिस की जानब से थाना रेस कोर्स में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जो मुलजमान कल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार किए गए थे उनको आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। और आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में बदनज़मी मरीजों पर भारी पड़ने लगी है। सर्विसेज अस्पताल की मरकज़ी इमारत की तमाम लिफ्टें ख़राब हैं और लवाहिकीन मरीजों को गोद में उठाकर वार्ड तक ले जाने पर मजबूर हैं। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक लिफ्ट्स की मरम्मत का काम जारी है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सज्जाद हुसैन। सर्विसेज अस्पताल लिफ्टें गैर फाल, एडमिन और सर्जिकल ब्लॉक की चारों लिफ्टें खराब। ऑपरेशन के बाद मरीजों को वार्ड में मुंतकिल होने में दुश्वारी का सामना। लवाहिकीन मरीजों को गोद में उठाकर सीढ़ियों के जरिए वार्ड्स में मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। एक बुजुर्ग मरीज ने बताया कि मेरा बेटा ऑपरेशन के बाद मुझे गोद में उठा कर लाया है। लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया से लिफ्टें जल्द फाल करने का मुतालबा किया। मेरी वाइफ 3 घंटे हो गए, ऑपरेट हो गया, उत्थे बैठी है, ठीक है, लंबी पई है, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਫਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुख्तार अहमद का मौक़िफ़ है कि टीमें लिफ्टें ठीक करने में मसरूफ़ हैं, जल्द मसला हल हो जाएगा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर ट्रेनों में रश बढ़ गया है। रश के पेश नज़र रेलवे इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी है। ट्रेनों में गैस सिलेंडर्स, आतिशगीर मादे और ममनू अशिया ले जाने पर सख्त से पाबंदी आयद की गई है। रेलवे इंतज़ामिया ट्रेनों में LPG सिलेंडर्स और ममनू अशिया की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। रेलवे पुलिस के जवान और ट्रेन स्टाफ ट्रेनों में सरप्राइज चेकिंग करेंगे। रेलवे पुलिस हुकाम ने सहमन शरीफ जाने वाले ज़ायरीन को गैस सिलेंडर साथ ना ले जाने की हिदायत भी की है। गैस सिलेंडर्स बरामद होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि दूसरी जानिब रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें लाहौर और फैसलाबाद से चलाई जाएंगी।
یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کی سالانہ کھیلوں کے انعقاد لاہور کیمپس کے گراؤنڈ میں طلباء نے مختلف کھیلوں میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اعلیٰ کارکردگی پر کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. یہ رپورٹ دیکھیں. یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں 19واں سالانہ سپورٹس ڈے پروفیسر ریٹائرڈ ڈاکٹر سرور خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ممبر پروڈکشن یونٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسلم جاوید اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد بھی شریک ہوئے. طلباء نے مختلف کھیلوں میں قسمت آزمائی کی. 100, 200 اور 800 میٹر کی ریس کا انعقاد کیا گیا. نیزہ بازی، ٹرپل جمپ، لانگ جمپ، ہائی جمپ اور 3 لیگ ریس نے سپورٹس ڈے کی رونق بڑھائی. ڈسک تھرو، مارشل آرٹ، جمناسٹک اور رسا کشی کے مقابلے شائقین کی توجہ کا مرکز بنے رہے. سالانہ سپورٹس ڈے میں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے لاہور، پتو کی جنگ اور ناروال کیمپسز نے حصہ لیا. پروفیسر ریٹائرڈ ڈاکٹر سرور خان نے طلبہ کو تعلیم کے ساتھ سپورٹس جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کی. یہ بہت ضروری ہے کہ جو آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ جب کمپیوٹر کا اور موبائل کا زمانہ ہے تو اس کے ساتھ بچے باہر نکلیں، گراؤنڈیں آباد کریں، کھیل کے میدان آباد کریں، اور وہ تبھی بچے جو ہیں وہ ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور وہ ان کا دماغ بلکہ جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کام کرے گا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نسیم نے کہا کہ یواس نے ایسے کھلاڑی بھی پیدا کیے جنہوں نے اولمپک چیمپئن شپ میں نام پیدا کیا. HEC کی رینکنگ میں یواس 4تھے نمبر کی بڑی یونیورسٹی بن چکی ہے. یواس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں 4تھے نمبر پہ آئی 2022 کی HEC کی رینکنگ میں. ہماری میجر جو ہم نے انٹرنیشنل اولمپئنز انہی گراؤنڈ سے پیدا کیے ہیں. تقریب کے اختتام پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں ٹرافیز بھی تقسیم کی گئیں. کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز. جشن بہارہ کی تقریبات جاری ہیں. خواتین کے عالمی دن پر جیلانی پارک میں PHA کے زیر اہتمام تقریب سجائی گئی. خواتین کے لیے جویلری اور کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے. یہ رپورٹ دیکھیں. جشن بہارہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری. جیلانی پارک میں خواتین کے عالمی دن پر خصوصی تقریب سجائی گئی. تقریب کا اہتمام پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی نے کیا. خواتین کے لیے جیولری اور کھانے پینے کے اسٹالز لگائے گئے. کھلونوں کے اسٹالز بچوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. خواتین نے خوب انجوائے کیا. ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں خواتین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. یکساں مواقع فراہم کرنے پر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہیں. یہاں پر کانسرٹ بھی ہوا، میجک شو بھی ہوا، ڈانسنگ شو بھی ہوا. ہم نے بہت انجوائے کیا. لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی ہیں، تو ہمیشہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور زندگی میں نا مستقبل اپنا سنوارنا چاہیے. اور یہاں پہ آج جشن بہار کا دن ہے اور میں نے یہاں بہت انجوائے کیا ہے. شہر میں جشن بہارہ کی تقریبات 12 مارچ تک جاری رہیں گی. آپ کو بتائیں کہ اسپیشل آپریشنز رینجرز ٹروپس کورس نمبر 31 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر لاہور کور تھے. کمانڈوز نے انسداد دہشت گردی کا جاندار مظاہرہ بھی کیا. پاسنگ آؤٹ پریڈ اسپیشل آپریشنز رینجر اسکولز رخ ٹیڑا لاہور میں منعقد کی گئی. کمانڈر لاہور کوڈ نے بحرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زبردست تربیت، جسمانی ذہنی پھرتی اور فوری رد عمل کو سراہا. انہوں نے کہا کہ پنجاب رینجرز بہادری، احسان اور فرض شناسی کی شاندار تاریخ رکھتی ہیں. دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. پاکستان رینجرز ایک متحرک فورس ہیں. کمانڈر لاہور کوڈ نے انتہائی مشکل تربیت کامیابی سے مکمل کرنے پر رینجرز کو مبارکباد بھی دی. تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا. ریلیوں، سیمینارز اور تقریبات میں خواتین کی خدمات کے اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ رپورٹ دیکھیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی پھیلانا ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے. اس دن مختلف تقریبات، سیمینارز اور مظاہروں کا اہتمام کیا جاتا ہے. پہلی بار امریکہ میں خواتین نے اپنی تنخواہ کے مسائل کے متعلق احتجاج کیا، لیکن ان کے اس احتجاج کو گھڑ سوار دستوں کے ذریعے کچل دیا گیا. پھر 1908 میں امریکہ کی سوشلسٹ
पार्टी ने विमेन नेशनल कमीशन बनाया और फरवरी की आखिरी तारीख को खवातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। आलमी यौम खवातीन सबसे पहले 1909 में 28 फरवरी को अमेरिका में मनाया गया। पहली आलमी खवातीन कॉन्फ्रेंस 1910 में कोपेनहेगन में मुनक्किद की गई। 8 मार्च 1913 को यूरोप भर में खवातीन ने रैलियां निकाली और प्रोग्राम मुनक्किद किए। अब बरसों से 8 मार्च को आलमी सतह पर यौम खवातीन मनाया जाता है। चीन, रूस, नेपाल, क्यूबा और बहुत से ममालिक में इस दिन खवातीन वर्कर्स की छुट्टी होती है। दीगर ममालिक की तरह बरसगीर में भी ये दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। माँ, बहन, बेटी, लाजवाल रिश्ते रखने वाली औरत की खिदमत का एहतराम करना ही उसके असल मकाम को तस्लीम करना है। खवातीन के आलमी दिन पर महकमा वुमेन डेवलपमेंट के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने कहा कि सनफी मसावात और माशी इस्तेहकाम के लिए खवातीन का डिजिटल टेक्नोलॉजी से रोशनास होना भी बहुत ज़रूरी है। ये रिपोर्ट देखें। खवातीन के आलमी दिन पर महकमा विमेन डेवलपमेंट की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब में सनफी मुसावात के लिए जिद्दत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का मौजू ज़ेर बहस रहा। तकरीब के दौरान खवातीन की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शमूलियत की अहमियत को उजागर किया गया। विमेन डेवलपमेंट हेल्पलाइन में बेहतरी के लिए नए SOPs मुतारफ करवाए गए। सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट पंजाब सुमेरा समद का कहना था कि खवातीन तकनीकी महारत हासिल करके खुद को बाइख्तियार बना सकती हैं। हर खातून को ये बात पता होनी चाहिए कि वो हर तरीके से मर्दों के बराबर हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है, और दूसरी भी बात ये है कि जो उनकी ज़िंदगी का इख्तियार है, जो वो सोचती हैं, जो उनकी ड्रीम्स हैं, जो अपने बारे में वो सोचना चाहती हैं, जो सलाहियतें हैं, उसके बारे में डिसीजन लेना उनका इख्तियार है और किसी का भी इख्तियार नहीं है। खवातीन की डिजिटल शमूलियत के हवाले से माहिरीन पर मुश्तमिल पैनल डिस्कशन का भी एहतमाम किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर खवातीन की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात भी दिए गए। ज़मान पार्क में पीछे रैली के दौरान वर्कर की मुबैना हलाकत का मामला है। पंजाब पुलिस ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इंक्वायरी कमेटी में 2 पुलिस अफसरान वाक़े की तहकीकात करेंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट IG पंजाब को पेश करेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको ज़मान पार्क में पीछे रैली के दौरान वर्कर की मुबैना हलाकत का मामला है। मुझे तफसीलात देंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल। ज़मान पार्क में कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लाहौर पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ और उस तसादुम में एक वर्कर की हलाकत का मामला जो है, उस हवाले से पंजाब पुलिस ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इंक्वायरी कमेटी में 2 पुलिस अफसरान जो हैं वो इस वाक़े की तहकीकात करेंगे। इन अफराद में जो इंक्वायरी करेंगे उनमें DIG एलीट फोर्स सादिक अली और SSP डिसिप्लिन इमरान किश्वर हैं जो इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी टीम गवाहों के बयानात भी लेगी और इंक्वायरी कमेटी की CCTV फुटेज और वाक़े की वीडियो क्लिप पर मुश्तमिल जो है तमाम हक़ाइक़ सामने रखते हुए 3 दिन में IG पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी कि ये मामला था क्या ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो पुलिस तशद्दुद से जाँ बाग हुआ या कोई और मामला था। ये तमाम इंक्वायरी जो है इसको 3 दिन में मुकम्मल करने के अहकाम दिए गए हैं और इस हवाले से पंजाब पुलिस ने नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया है और उसके मुताबिक इन 2 अफसरान को इंक्वायरी कमेटी के लिए जो है इनके नाम सामने आए हैं, जिनमें DIG एलीट फोर्स सादिक अली हैं और SSP डिसिप्लिन इमरान किश्वर शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीबान सेमिनार रैलियों का एहतमाम स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और सरे इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से पंजाब पुलिस, ट्रैफिक वार्डन्स और खिलाड़ी ख़वातीन की बाइक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें पैगाम दिया गया कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखें। ख़वातीन का आलमी दिन लाहौर में भी तकरीबान सेमिनार, रैलियां और आगाही वर्क। मर्दों के शाना बशाना अपनी सलाहियतें मनवाने वाली ख़वातीन भी सड़कों पर आ गईं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और सरे इंतज़ामिया लाहौर के ज़रिए एहतमाम बाइक रैली इफ्तिताह कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने किया। रैली हुसैन चौक से MM आलम रोड तक निकाली गई।
रैली में खवातीन पुलिस एहलकार, तालिबात, रेस्क्यू, 1122 समेत कई महकमों से वुमेन बाइकर्स और एथलीट्स ने हिस्सा लिया। यूनिफॉर्म्स में मलबूस खवातीन पुलिस एहलकारों ने अपने अज़्म और हौसले की तजदीद की कि कोई माशरती या माली मुश्किल इनका रास्ता नहीं रोक सकती। हम विमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तमाम अचीवमेंट जो एक ऑर्डिनरी वुमन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से की हैं, उन सब अचीवमेंट्स को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर ख़वातीन को आगे आना चाहिए और ये एक अच्छा इक़दाम है ख़वातीन के लिए। हर एक को खुद मुख्तार होना चाहिए, अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए हमारे लिए ये डिपार्टमेंट आया है। कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कोशिश है कि ख़वातीन की सलाहियतों और कामयाबियों का एहतराफ किया जाए। ये हम बताना चाह रहे हैं कि अपने पाकिस्तान में और तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड के ख़वातीन के शाना बशाना मिलकर जो है कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह और तरक्की करता रहेगा। ख़वातीन ने डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, चाहे हम बरे सगीर की तारीख़ देखें, पाकिस्तान की क्रिएशन देखें, और अभी तक हर शोबे में हम आगे ख़वातीन का नज़र आता है रोल। बाइक रैली के शुरका पुरअज़्म थी कि माशरा उन्हें मर्द के बराबर शहरी के हकूक दे, तो इससे न सिर्फ ख़वातीन इंफरादी तौर पर नुमाया मुकाम हासिल करेंगी बल्कि मुल्क भी तरक्की करेगा।